कुछ एकता मंच के मिस्टर कौल सर और सब माय डियर sisters and brothers, actually I am honored to have dialogue with you and to watch such wonderful program. I first congratulate Mr. Kaul on behalf of Mr. Padwal, Joint Secretary, Traffic Movement. Sinha sir, what he has spoken, in true sense, it is really correct that there is no need to wear uniform for fighting anti-social elements. Because I believe every person sitting here is capable of fighting such bad elements. What our martyrs or our freedom fighters have done for our country, our society, we should pay tribute to them. But whatever we are going to do for this country, let us introspect what we are doing for our country. The sacrifices made by these officers, these soldiers, will come in reality only when we contribute something for this nation. Alone police can't do. We need your help. And what Mr. Kaul is doing through the medium of Mohalla Committee to maintain peace and harmony, we must participate in such activities so that we can maintain law and order in true sense. मैं ये मानता हूं कि अगर हमने यूनिफॉर्म पहना है तो हम सबसे पावरफुल नहीं हुए। ये हमें जो ताकत मिलती है वो आपके बलबूते पे मिलती है, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हो। और अगर आपका और हमारा बॉन्डिंग हो जाता है तो कोई भी ताकत, कोई भी पूरी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो ओकेजन बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम हुआ है, लेकिन ये जो मैसेज देता है वो यही मैसेज है कि फेलिसिटेशन तो है, ये फेलिसिटेशन इन लोगों का नहीं है, ये हमारे हाथों से इनका फेलिसिटेशन हुआ, ये हमारे गौरव की बात है। और ये पाने के लिए हर एक को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस व्हाट डज इट मीन? सैक्रिफाइस यानी कुछ ना कुछ समय आप अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए निकालिए। आज हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो है, बच्चे हर वक्त मोबाइल या कुछ बाकी चीजें वगैरह चालू रहता है इसमें। नो डाउट दे शुड यूज टेक्नोलॉजी, लेकिन ये करते वक्त भी अगर ये बच्चे ऐसे किसी प्रोग्राम में अगर शरीक होते हैं तो दे विल गेट इंस्पिरेशन, दे विल मोटिवेटेड। तो उनको ऐसे प्रोग्राम्स को जोड़ना चाहिए। ये भी किया हमने तो बहुत जीत हमने हासिल की। And Children Welfare Center Law College has jointly organized this program on the occasion of Independence Day to felicitate war heroes, defense personnel. For this program, the President of Ekta Manch, who is all the time active in his social work, President Mr. Ajay Kaul, DCP Nitinji, Anandji Kalse, all those present, all those defense personals,
I am indeed very, very happy to be amongst you for both reasons. One, I have to give that message of Independence Day which Sinha ji has told us. But for your information, I tell you, I am also part of defense because I studied in Satara Sainik School, and I know many of my batchmates. Almost I passed out in 1982. I cleared UPSC twice, but both at Bhopal and at Bangalore I failed in SSB. That's why I have been into civil service. So, but anyway, that stream was not for me, though I had undergone a hard training in Satara Sainik School those days from 1975 to 82. But many of my batchmates, 2 of them are now Lieutenant Generals, and almost from my batch 32 people they joined NDA. So I know from inner side what are the problems of the defense personnel. Earlier to this, I was Collector Ahmednagar, which was the base of military. All ASC and all everything was there. Also, I was at Solapur. I belong to Satara district. I know in my native place what are the issues that are faced by the defense personnel. For your information, I started this Amrut Jawan Samman Abhiyan in Ahmednagar. As a collector, there were almost 15,000 families which were in Ahmednagar district. So I know, fortunately, Superintendent of Police, Manoj Patil, he was also my junior in the school. So he was also from Sainik, and there we have a get together, and we had almost disposed of almost 7,500 complaints or their demands of the defense personnel. This proposal was taken up by General Administration Department of Government of Maharashtra. They have replicated this Nagar pattern in all 36 districts of the Maharashtra, and it has been also replicated. Now it has come in the coffee table book of Prime Minister's office. So now it will be replicated throughout the country. Thing is that you have number of issues, so many things, because I am also chairman of this district Sainik Welfare Board. So there are a number of issues regarding measurement of your land, regarding your property card, regarding your rationing, your grant of land issues and all those things. Today I am not going to give a long speech, but I am very happy, Ajay ji, कि you could gather all these defense personnel throughout the country and they had come here. Here in Mumbai, because at the district basis, we have a good connections with all those defense personnel. So, but here in Mumbai it is difficult. Now I am collector Mumbai suburb. I am after this Flag Day collection also everything. So instead of giving something, giving only speech, I would like to know all your difficulties, what issues, what policies are to be made, so that we can formulate a policy which will be in long run will help the defense personnel. And that is what, if certain suggestions are given, I had a good connections with all ministries and all those things. If you come with the proposal and if it is given, you can give it to Ekta Manch also. We can jointly move the government and we can formulate the policy, and that will be the real gift to you all from the government. नहीं, एकता मंच ने जो भी वॉर हीरोज है, डिफेंस पर्सनल्स है, देश के विविध विभागों से उन्होंने यहाँ पे बुला के उनका कंट्रीब्यूशन का जो फेलिसिटेशन किया है वो बहुत ही अच्छी बात है। उससे सब लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, एक बात है। दूसरी बात है कि आज के स्पीच में मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे
1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारा महसूल सप्ताह था, उसमें भी मैंने यही जिक्र किया था कि एक दिन जो है ये अपना सैनिकों के लिए होना चाहिए। वैसा एक दिन हमने वहाँ पे अरेंज भी किया था। उसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन आया उसका भी हमने डिस्पोजल किया। वैसे राज्य में, पूरे राज्य में 36 जिलों में भी सब जगह पे वो एक दिवस सैनिकांच्यासाठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी याच्या करता इसके लिए दिया था। तो अभी जो है कि मुंबई सबब में जो इश्यूज है वो डिफरेंट इश्यूज है, उसके लिए मैंने उनको अपील किया हो कि उनके कुछ भी इश्यूज है, एक तो डायरेक्टली मुझे दे दे या ये एकता मंच की तरफ से दे दो। अगर बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए जो भी क्या पॉलिसीज बनाने की है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। विजय का मौका है, आने वाले सालों में क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं सर? भारत देश में 77 ईयर्स में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरह से ये चल रहा है कि हमारा जो है कि सब जो प्रोग्रेस है सभी फील्ड पे है, हेल्थ पे है, फिर हमने इतना बड़ा पैंडेमिक भी ये किया, तो अच्छी तरह से काम हो रही है। अजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे को छोड़ दें। अगर अग्रेशन बढ़ेगा लोगों का, अगर उस बारे में सर नहीं, देखिए जब आज हमारे को ऑनरेबल कलेक्टर वेस्टर्न सबब के भोसले साहब जो उन्होंने लोगों को बताया और ख़ास कर जो लोगों की तकलीफ़ें हैं जो उनको दूर करने का जो उन्होंने यकीन दिलाया है लोगों को, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो उनकी समस्या है उसका हल निकलेगा। तो मुझे लगता है आज इस मौके पर लोगों को सचमुच इसका बहुत फ़ायदा होगा। सर, आज जो फैमिलीज यहाँ पर आई थी, लोग भी बहुत इमोशनल हुए सर, उस बारे में अगर कुछ बात करें आप? देखिए, हर इंडियन के दिल में अपने देश के प्रति तो प्यार है और जब वो जज्बा सामने दिखाई देता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि ये देश के प्रति प्यार है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नए दौर की शुरुआत है, क्योंकि हम अक्सर ऐसे जवानों को भूल जाते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अपनी बहन की है। ऐसे लोगों के प्रति हमारी एक संवेदना है जो इस कार्यक्रम के जरिए हमने पेश की है। आगे भी हम प्रेरित होकर कुछ ऐसे कार्यक्रम हमें करना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर एक होना चाहिए, क्योंकि मसला सिर्फ देश के बॉर्डर तक नहीं सीमित है, ये अंदर तक पहुँच चुका है। इसलिए मेरी ये अपील है कि हर एक जो यूनिफॉर्म नहीं पहनता वो भी जवान है और उससे कुछ इस देश के प्रति करना चाहिए, यही मैसेज हम देना चाहते हैं। सर, चलो, अगर एकता मंच के इस इनिशिएटिव के बारे में अगर हम बात करें, एकता मंच का जो इनिशिएटिव है मैं इसका बहुत सराहना करता हूं और ऐसे बहुत सारे उपक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई जो है ना 15 अगस्त 1947 को ख़त्म नहीं हुई थी। ये वो खेल नहीं था कि सीटी बजी तो गेम शुरू हो गया, सीटी बजी तो गेम खत्म हो गया और भारत जो है वो विनर डिक्लेयर हो गया और शत्रु ने खेलना छोड़ दिया। खेल में होता है जैसे हम सीटी बजती है फिनिश लाइन की, शत्रु सोचता है जो भी है खेल खत्म हो गया। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, भारत के सभी वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि शत्रु ने खेल खेलना छोड़ा नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी वो निरंतर लगा हुआ है, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर वो बुरी नज़र से देख रहा है और शत्रु चाहे बदलता रहे, विश्व में कोई दूसरी शक्ति आती रहती है, पुरानी शक्ति अस्त होती है, नई शक्ति कोई उभरती है और दुनिया के सारे देश जो है भारत की संप्रभुता से, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन हमारे शत्रु सदैव रहते हैं और इसी के लिए वी कैनॉट लेट आवर गार्ड डाउन, वी हैव टू बी अप एट इट ऑलवेज इन द बैटल मोड। और उस कारण से मैं बोल रहा हूं कि सीमाओं का जो था पहले लड़ाई, सीमाओं की रक्षा की जो बात थी वो है, आज भी है, लेकिन शत्रु जानता है कि भारत कितना सशक्त है और इसको समाप्त करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए एक मार्ग है, अंदर से इसे कमजोर किया जाए और वो पूरा प्रयास कर रहा है। इसीलिए मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि वो दे शुड स्मेल द कॉफी, वो शत्रु की हर चाल को देख पाएं, समझ पाएं कि इसके पीछे चाल क्या है, षड्यंत्र क्या है और उसको सी थ्रू करें और तैयार रहें। दे शुड बी एबल टू रीड द न्यूज बियॉन्ड द हेडलाइंस कि उसके पीछे मंशा क्या है। एंड वी ऑल ऑफ अस, इस देश का नागरिक सैनिक है एंड वी शुड बी एबल टू राइज अप टू द ओकेजन एंड गिव ईच एंड एवरी एनिमी, चाहे वो बाहर हो या यहाँ हमारे बीच में हो, अ ब्लडी नोज कि वो भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा
तो हम उसकी आंख निकाल देंगे, ये चेतावनी है।